let me turn your attention to the Gospel according to St. John, chapter 16. और आज हम देखेंगे यूहन्ना रचित सुसमाचार उसका 16वां अध्याय। Well, just before this chapter, we can see Jesus telling about how he'll be rejected. और इस अध्याय के पहले अध्याय में हमने देखा है कि कैसे यीशु को नकारा गया। And Jesus is in the 16th chapter, Jesus is warning his disciples that a day will come when he will be rejected, and he is comforting his disciples. और हम 16वां अध्याय में हम देखते हैं कि यीशु अपने चेलों को बताता है कि कैसे लोग उनको नकारेंगे और यीशु उनको संतावना देता है। Then in this particular chapter, we also see the work of the Holy Spirit. Jesus is introducing about the Holy Spirit. और हम इस 16 अध्याय में देखते हैं कि प्रभु यीशु ने पवित्र आत्मा के बारे में बताया। उसने हमें पवित्र आत्मा कैसे होती है वो हमें सिखाया है। Today we will concentrate from verse 16 onwards. और अभी हम 16 अध्याय के 16वें वचन से हम देखेंगे। So here it talks about how sorrows will turn to joy. और इसमें हम देखते हैं कि कैसे जो हमारा शोक है वो आनंद में बदल जाता है। So let's read verse 16. A little while and you will not see me, and again a little while you will see me, because I go to the Father. थोड़ी देर में तुम मुझे ना देखोगे और फिर थोड़ी देर में मुझे देखोगे। तब उसके कुछ चेलों ने आपस में कहा, यह क्या है जो वह हमसे कहता है कि थोड़ी देर में मुझे देखोगे और फिर थोड़ी देर में मुझे ना देखोगे, क्योंकि मैं पिता के पास जाता हूँ। Yes, here we can see that Jesus is actually foretelling his death. और यहाँ पे हम देखते हैं कि वो अपने मौत के बारे में बताता है। His death, his resurrection, his ascension into heaven, and his second coming. और उसकी मृत्यु, उसका पुनरुत्थान, उसका स्वर्ग आरोहण, उसका दूसरी बार इस जगत में आना। But the disciples, just like ordinary people, they were a bit confused. They did not know what exactly Jesus was talking about. लेकिन उसके चेले, जैसे कि हम साधारण इंसान होते हैं, वो बिल्कुल भी दुविधा में पड़ गए थे। वो समझ नहीं पा रहे थे कि यीशु उनसे क्या बातें कर रहा है। Let's read verse 17 and 18. Then some of his disciples said among themselves, what is this that he says to us? A little while and you will not see me, and a little while you will see me, and because I go to the Father. They said therefore, what is this that he says, a little while? We do not know what he is saying. और उसके बाद उसके जो चेले वहां पे बैठे हुए थे, वो आपस में बातें करने लगे कि ये क्या बातें ही जो कह रहा है कि थोड़ी ही देर में मैं यहाँ से चला जाऊंगा, फिर थोड़ी ही देर में तुम मुझे यहाँ से नहीं देख पाओगे, फिर मैं अपने पिता के पास जाऊंगा। ये क्या बातें हैं ये जो कर रहा है? Maybe the disciples, they had different ideas. They thought that one day Jesus will become a physical king on this earth, and they would also enjoy a lot of luxury. Or maybe they thought that everything will be set in this time frame. और हो सकता है उसके चेले ये सोच रहे होंगे कि वो शारीरिक रूप से इस जगत में ही रहेगा, कि और भी वो वैसे काम करेगा और उसके चेले उन चीजों को वो देख पाएंगे, उसका आनंद का अनुभव कर पाएंगे। But Jesus, he was following a script from heaven. लेकिन यीशु वो उन स्क्रिप्ट को वो फॉलो कर रहा था जो स्वर्ग से लिखकर आई हुई थी। Yes, the purpose of Jesus coming into this world was to become a sacrifice so that man and God can be reconciled with the precious blood that he is about to shed on that precious cross. तो इस जगत में प्रभु यीशु का आने का मकसद सिर्फ यही था कि वो एक बलिदान होकर आए और हम सब मानव जाति के लिए अपने लहू को बहाए, ताकि वो हमारे पापों का उद्धार कर सके। Now when we read verse 19, we can see that now Jesus knew that they decided to ask him, and he said to them, are you inquiring among yourselves about what I said? A little while and you will not see me, and again a little while and you will see me. हम 19 वचन को देखेंगे। यीशु ने यह जानकर कि वे मुझसे पूछना चाहते हैं, उनसे कहा, क्या तुम आपस में मेरी इस बात के विषय में पूछताछ करते हो? थोड़ी देर में तुम मुझे ना देखोगे और फिर थोड़ी देर में मुझे देखोगे। We know that Jesus spoke in parables many a time. That is, some things he hid to himself. और वो जानते थे कि यीशु उदाहरणों में बहुत सारी बातों को करता है, वो उनको सिखाना चाहता था।
Well, we see that Jesus, he was actually foretelling his death, resurrection, and everything, but the disciples, they were still confused. और जैसे कि हम जानते हैं कि यीशु अपनी मौत के वर्णन के बारे में उनको बता रहा था, लेकिन उसके चेले फिर भी कंफ्यूज थे। Well, we see that these disciples, they were with Jesus for a long time. They'd seen the miracles that he had performed. They'd seen everything, every good thing that Jesus had done. और जो उसके चेले थे वो शुरू से ही उसके साथ थे। और यीशु ने इतने चमत्कार किए, इतने सारे उसने आश्चर्य कर्म को किए, वो सब उसके चेलों ने देखा था। They saw Jesus healing the blind. They saw Jesus giving the hearing ability to the deaf. They saw Jesus making the mute speak. और उन्होंने ये देखा था कि परमेश्वर के पास ये ताकत है कि उसने अंधों की आंखों को ठीक किया था, उसने गूंगों को बोली दी थी, उसने उसके कानों जो बहरे थे उसको सुनने की ताकत को दिया था। They saw the crippled walk, the lame walk. They saw the paralyzed taking the beds and going home. और उन्होंने देखा था कि जो लकवे का जो बीमार था वो चंगा हो गया था, और उन्होंने देखा था जो कोढ़े थे वो चंगे हो गए थे, और जो वो लोग जो बीमार थे वो अपनी चटाई उठा के चले जाते थे। Yes, they saw the other miracles that Jesus did. They saw Jesus multiply bread and feed the 5,000. और उन्होंने उसके अद्भुत चमत्कार को देखा था। उन्होंने देखा था कि उन्होंने जो रोटियां थी उसको उन्होंने इतनी सारी भीड़ को उनको खिलाया था। Jesus took the lunch box of a small boy, 5 loaves of bread and 2 fish, and he multiplied. They saw all these things with their eyes. और उन्होंने देखा था कि यीशु ने एक छोटे बच्चे से उसका एक लंच बॉक्स लिया था, उसमें उसके 5 रोटियां और 2 मछली थी, उसको बहुत सारा उसको मल्टीप्लाई करके उन्होंने उस भीड़ को खिलाया था। उन्होंने इस चमत्कार को देखा था। They saw water turned into wine. और उन्होंने देखा था कि जो पानी था वो दाखरस में बदल गया था। They saw the resurrection of Lazarus. They saw the resurrection of the son of the widow of Nain. और उन्होंने देखा था कि वो जो नाइन की जो विधवा थी उसके बेटे को उसने जीवन दिया था। उन्होंने देखा था कि जो लाजर था उसको उसने मृत्यु से उसने जिला दिया था। They saw the miracles that happened in the life of the daughter of Jairus. They saw a lot of things, but they did not know about the day that was going to come, the rejection of Christ. और उन्होंने देखा था कि वो जो जायर की जो बेटी थी उसको उसने चंगा किया था। वो सारे चमत्कार को देखने के बाद भी उन्होंने देखा था कि वो लोग यीशु को वो त्याग करेंगे। They saw Jesus forgive the sins of people. They saw everything good, but they never ever imagined that Jesus was going to die one day for the sins of mankind. और उन्होंने देखा था कि उसने पापियों के जो पाप थे उसको क्षमा किए थे, उसने बहुत अच्छे अच्छे काम किए थे, लेकिन उनके चेलों ने कभी भी ये इमेजिन नहीं किया था कि वो एक दिन ऐसा मारा जाएगा और इस संसार को छोड़ के चला जाएगा। Now Jesus, he wants to reveal a little bit about the coming suffering. We see in verse 20, he's saying, most assuredly I say to you that you will weep and lament, but the world will rejoice, and you will be sorrowful, but your sorrow will be turned into joy. और हम यहाँ पे देखते हैं कि यीशु अपनी मौत का जो वर्णन है वो थोड़े से उन्हें समझाना चाहता है कि उसकी मृत्यु कैसे होने वाली है। वो कहता है कि संसार आनंद करेगा, लेकिन तुम्हें दुख होगा, तुम्हें तकलीफ होगा, लेकिन तुम फिक्र मत करो, क्योंकि जो तुम्हारा शोक है वो आनंद में बदल जाएगा। In this same verse, this verse, you can see what he was foretelling. He was telling about when the people will cry and lament when they see Jesus brutally being tormented on the cross. और यहाँ पे यीशु बताता है कि जो संसार है वो रोएगा, वो विलाप करेगा, और वो यीशु के साथ बहुत ही दुर्व्यवहार करेंगे और उसे मारेंगे और पीटेंगे। And he was talking about the world will rejoice. Yes, the people, they were telling, crucify him, crucify him. Set Barabbas free and crucify Jesus. और उसने ये भी कहा कि लोग कहेंगे उसको कि इसको क्रूस पे चढ़ाओ, इसको क्रूस पे चढ़ाओ, और बरब्बा को रिहा कर देंगे और उसको क्रूस पे चढ़ाएंगे। And he's saying, yes, you will be sorrowful at that time. The crucifixion, the disciples of Jesus, they ran for their life. Yes, the mother of Jesus and every near and dear, they were all in sorrow. और जैसा कि हम देखते हैं कि यीशु को जब क्रूस पे चढ़ाया गया था तो उसके चेले थे वो बहुत ही दुखी थे, और जो यीशु की जो माँ थी वो बहुत ही ज्यादा इन सब को चीजों को देख के बहुत ही दुखी हो गई थी। But look at the next verse, but that is, but your sorrow will be turned into joy.
लेकिन हम उसके अगले वचन को देखते हैं कि प्रभु कहता है कि तुम्हारा जो शोक है वो आनंद में बदल जाएगा। The world saw Jesus crucified, dead, and buried, but nobody counted on a resurrection. और जैसे कि संसार ने सिर्फ देखा कि उसको क्रूस पे चढ़ाया गया, उसे मारा गया, उसे गाड़ा गया, लेकिन उसके पुनरुत्थान को किसी ने नहीं देखा। Yes, that is the surprise. That is why we say, your sorrow will be turned into joy. हाँ, यही यही वो सरप्राइज था, यही वो आश्चर्य की बात थी कि प्रभु ने कहा कि तुम्हारा जो शोक है वो आनंद में बदल जाएगा। In the same way, you might be going through different phases in your life. और इसी तरीके से हो सकता है कि आप भी अपने जीवन में बहुत ही डिफिकल्ट समय से जा रहे हो। Maybe some of you are weeping now and lamenting now, but maybe the world is rejoicing over what you're going through. और हो सकता है कि हम में से आप कोई भी हो जो बहुत ही रो रहा हो, वो विलाप कर रहा हो, और ये संसार बहुत ही मजे कर रहा हो। Yes, maybe you're sorrowful, but a day is coming when your sorrow will be turned into joy. और हो सकता है कि अभी आपका शोक मनाने का समय हो, लेकिन वो समय आता है जब आपका जो शोक है वो आनंद में बदल जाएगा। Because we serve Jesus Christ, the one who came back from the dead. The resurrected Savior is alive in you. और क्योंकि हम उस परमेश्वर की सेवा करते हैं जो मुर्दों में से जी उठा है और वो आज भी जीवित है। In the same way, you will also resurrect from your problems. और इसी सेम तरीके से आप भी अपनी जितनी भी समस्याएं हैं उससे आपका पुनरुत्थान हो जाएगा। Let's read verse 21 and 22. A woman, when she is in labor, has sorrow because her hour has come. But as soon as she has given birth to the child, she no longer remembers the anguish or joy that a human being has been born into the world. प्रसव के समय स्त्री को शोक होता है क्योंकि उसके दुख की घड़ी आ पहुंची है, परंतु जब वो बालक को जन्म दे चुकती है तो इस आनंद से कि संसार में एक मनुष्य उत्पन्न हुआ है, उस संकट को फिर स्मरण नहीं करती। Verse 22, therefore you now have sorrow, but I will see you again, and your heart will rejoice, and your joy no one will take from you. और हम 22 को देखेंगे, उसी प्रकार तुम्हें भी अब तो शोक है, परंतु मैं तुमसे फिर मिलूंगा और तुम्हारे मन आनंद से भर जाएंगे और तुम्हारा आनंद कोई तुमसे छीन न लेगा। When Jesus, when he resurrected, after that he appeared to his disciples. That was a moment of joy. All the sorrows were turned into joy. और जब हम देखते हैं कि यीशु के पुनरुत्थान के बाद जब वो अपने चेलों से मिला, तब वो समय था, तब वो मोमेंट था जब उनका जो शोक था वो आनंद में बदल गया था। Yes, just like a woman when she is in labor, she has to bear the pain, but ultimately when the child is born, all the pain is forgotten in an instant. जैसा कि हम देखते हैं कि जब एक स्त्री होती है, जब उसे प्रसव की जो पीड़ा होती है तब वो तकलीफ में होती है, लेकिन जैसे ही वो बालक इस धरती पे जब वो जन्म लेता है वो सारे दुखों को भूल जाती है। Jesus took your pain, your shame, your sin all upon that cross. और यीशु ने हमारी सारे शर्म को, हमारे सारे गलत कामों को, हमारे सारे पाप को उसने अपने ऊपर क्रूस पे उठा लिया। He suffered every sickness, every pain, everything. Therefore, by his stripes, you were healed. और उसने हमारी सारी निर्बलता को, उसने सारे हमारे दुखों को, हमारे सारे बीमारियों को उसने अपने ऊपर ले लिया। उसके कोड़े खाने से ही हम चंगे हुए हैं। Now, when we look at the nail-pierced hands of Jesus Christ, yes, what do we see? और जब हम आज भी उसके उन कील ठुके हुए हाथों को देखते हैं तो हम ये क्या सोचते हैं? Now, when he stretches forth his hands to touch you, to heal you, yes, he can turn your sorrows into joy, my dear friends. और जब वो अपने उन जख्मी हाथों से आपको वो छूता है तो आप चंगे हो जाते हैं, और वो आपको आज भी वो चंगे करने के लिए तैयार है। Yes, Jesus, he suffered. Yes, he told that this world is full of trouble, but be of good cheer, because I have overcome the world. और यीशु यहाँ पे कहता है हमसे कि हाँ, तुम्हें संसार में थोड़ा सा दुख होगा, लेकिन तुम चिंता मत करो, क्योंकि मैंने इस संसार को जीत लिया है। Now, let's look at one of the rewards of this crucifixion and resurrection. In verse 23 and 24, we read this. And in the day, you will ask me nothing. Most assuredly, I say to you,
whatever you ask the Father in my name, he will give you. और हम देखते हैं 23 वचन को, उस दिन तुम मुझसे कुछ ना पूछोगे, मैं तुमसे सच सच कहता हूं, यदि पिता से कुछ मांगोगे तो वह मेरे नाम से तुम्हें देगा। Because of all the suffering that Jesus undertook at that cross, what is the benefit that you and I have? और जो सारी जो दुख और तकलीफ जो यीशु ने उस क्रूस पे उठाई, तो उसका क्या लाभ हुआ जो आपको और हमें मिला है? It can be summed up in this simple sentence: whatever you ask the Father in my name, he will give you. और वो सारे चीजों का समेशन मैं इस एक लाइन में बताता हूं कि जो कुछ भी तुम पिता से मेरे नाम से मांगोगे वो तुम्हें देगा। The question is, are you ready to ask Jesus whatever you want in the name of Jesus? Whatever you ask, it will be granted. और ये सवाल ये उठता है कि क्या आप तैयार हैं उससे मांगने के लिए पिता के नाम से? क्या आप तैयार हैं यीशु के नाम से उससे मांगने के लिए? आप जो कुछ भी मांगेंगे पिता आपको उसके नाम से देगा। As long as it is in the perfect will of God, as long as it is a promise in the Bible, you can claim it, speak it, receive it, ask and you will receive. और जैसा कि बाइबल में ये लिखा हुआ है, ये वादा लिखे हुए हैं कि परमेश्वर के नाम से आप क्लेम कर सकते हैं कि उसके नाम से आप मांग कर देखिए, वो आपको देगा। Name your problem and look at the solution for that problem given in the Bible and claim it, ask and you will receive. और आप अपनी प्रॉब्लम को, आप आपकी जो भी समस्याएं हैं, आप उसको परमेश्वर के सामने लेकर आइए, आप उसके नाम से उसको दुआ करिए और वो उसके उस समस्या का वो सॉल्यूशन को वो देगा। If you are sick, you are healed. अगर आप बीमार हैं तो आप चंगे होंगे, If you are a sinner, you are saved. और अगर आप पापी हैं तो आप बचाए जाएंगे। Whatever the problem, there is a verse for you in the Bible. There is nothing too hard for God. और आपका कोई भी समस्या क्यों ना हो, बाइबल में जैसा लिखा हुआ है, परमेश्वर के लिए कुछ भी नहीं है जो कठिन हो। Verse 24, until now you have asked me nothing in my name. Ask and you will receive, that your joy may be full. और हम 24 वचन को देखेंगे, अब तक तुमने मेरे नाम से कुछ नहीं मांगा, मांगो तो पाओगे ताकि तुम्हारा आनंद पूरा हो जाए। Jesus is asking, is saying to you the same verse now. Until now you have asked nothing in my name. Ask and you will receive, that your joy may be full. और यीशु हमसे यही बात कह रहा है कि अभी तक तुमने मेरे नाम से कुछ भी नहीं मांगा, तुम मांगो ताकि तुम्हारा आनंद पूरा हो जाए। Now are you ready to ask your problems? Ask Jesus whatever you want. He is ready to give you, so that your joy it may be full. और इस सवाल ये है कि क्या आप तैयार हैं उससे मांगने के लिए? अगर आप उससे मांगने के लिए तैयार हैं तो वो आपको देने के लिए तैयार है ताकि आपका जो आनंद है वो पूरा हो जाए। Now from verse 25 to 33, we can see that this portion talks about that Christ Jesus, yes, overcome the world. और हम देखते हैं 25 से 33 अध्याय तक कि परमेश्वर ने कैसे इस राज्य पे उसने विजय किया। Yes, you are more than a conqueror because Christ, he conquered the world. क्योंकि आप और हम जो है एक विजयी जो है उससे बढ़कर हैं, क्योंकि परमेश्वर ने इस जगत को जीत लिया। We serve a victorious God. As sons and daughters of a victorious God, you too are victorious. You are more than a conqueror. और हमारा जो परमेश्वर है वो विजयी परमेश्वर है, और हम उसके विजयी बेटा और बेटी हैं, क्योंकि उसने, और हम जो है उस विजय से भी बढ़कर हैं। Death couldn't defeat him. Yes, the grave couldn't hold him. The nails couldn't contain him. और जो मौत है उसको वो उसको हरा नहीं पाई, जो कब्र है उसको थाम नहीं पाई, और जो उसके जो चोटें थी वो उसको रोक नहीं पाई। Verse 25. These things I have spoken to you in figurative language, but the time is coming when I will no longer speak to you in figurative language, but I will tell you plainly about the Father. 25 वचन में देखते हैं, मैंने ये बातें तुमसे दृष्टांतों में कही हैं, परंतु वह समय आता है कि मैं तुमसे फिर दृष्टांतों में ना कहूंगा, परंतु खोलकर तुम्हें पिता के विषय में बतलाऊंगा। Yes, as I told you, Jesus used figurative language and parables so that he could conceal some things but reveal a little.
और जैसा कि हम जानते हैं कि प्रभु दृष्टांतों में बहुत बातें करता था ताकि वो कुछ चीजों को बता सके और कुछ चीजों को ना बताए। Let's read from verse 26 onwards. In that day, you will ask in my name, and I do not say to you that I shall pray the Father for you. For the Father himself loves you because you have loved me and have believed that I came forth from God. उस दिन तुम मेरे नाम से मांगोगे और मैं तुमसे यह नहीं कहता कि मैं तुम्हारे लिए पिता से विनती करूंगा, क्योंकि पिता तो आप ही तुमसे प्रेम करता है, इसीलिए कि तुमने मुझसे प्रेम रखा और यह भी विश्वास किया कि मैं पिता की ओर से आया हूं। Did you, if you see clearly, you can see always see that Jesus, when he was in the world, he was praying to his Father. और जैसा कि अगर आपने ये नोटिस करेंगे कि आप देख रहे हैं कि जो यीशु जो है अपने पिता से प्रार्थना करता है, Our Father, thou art in heaven. हमारे परमेश्वर जो स्वर्ग में है। Now in verse 27, we see that for the Father himself loves you because you have loved me and have believed that I came forth from God. Yes, have you believed that Jesus came from God the Father? Do you believe in Jesus और Christ? जैसा कि 27 अध्याय में लिखा है कि क्योंकि पिता आप तुमसे आप ही प्रेम रखता है, क्योंकि तुमने पिता मुझ पे विश्वास किया और तुमने ये विश्वास किया कि मैं पिता की ओर से आया हूँ। क्या आप ये विश्वास करते हैं कि यीशु जो है वो पिता की ओर से आया है? Yes. God was pleased in what Jesus did. So whatever you ask in the name of Jesus Christ, your Father in heaven will grant it to you. हाँ, जो पिता परमेश्वर है वो यीशु ने जो कुछ काम किए उससे बहुत ही प्रसन्न है, इसीलिए आप यीशु के नाम से अगर पिता से कुछ भी मांगेंगे तो वो आपको देगा। The name of Jesus is a sure sign of victory. The name of Jesus can grant you anything as he will give you the desires of your heart. और जो परमेश्वर जो यीशु का जो नाम है वो एक विजयी नाम है। अगर आप यीशु के नाम से वो कुछ भी मांगेंगे तो आपके हृदय की जितने भी डिजायर्स है, जो भी इच्छाएं हैं, वो आपको पूरी करेगा। Verse 28, I came forth from the Father and have come into the world. Again I leave the world and go to the Father. और 28 वचन को देखेंगे, मैं पिता की ओर से जगत में आया हूँ, मैं फिर जगत को छोड़कर पिता के पास जाता हूँ। Jesus came from heaven into this earth in the form of a baby. He was born in a manger. Now he was crucified, dead, buried, and is resurrected and is about to go to heaven. यीशु इस जगत में जो आया वो एक बच्चे के तरह पे आया और उसने एक गौशाले में उसने जन्म लिया। उसके बाद उसे क्रूस पे चढ़ाया गया, उसे मारा गया, उसे गाड़ा गया, उसके बाद उसे स्वर्ग आरोहण हो गया। Now, when Jesus was saying these things, the disciples got a better understanding. Now they were saying that Jesus, now he is speaking plainly. और उसके बाद जब ये बातें यीशु कर रहा था तो उसके जो चेले थे अब थोड़ा बहुत समझने लगे थे कि वो किन शब्दों में बातें कर रहा है। In verse 29, we read like this. His disciples said to him, see, now you are speaking plainly and using no figure of speech. Now we are sure that you know all things and have no need that anyone should question you. By this we believe that you came forth from God. उसके चेलों ने कहा, देख अब तो तू खोलकर कहता है और कोई दृष्टांत नहीं कहता। अब हम जान गए हैं कि तू सब कुछ जानता है और इसकी आवश्यकता नहीं है कि कोई तुझसे कुछ पूछे। इससे हम विश्वास करते हैं कि तू परमेश्वर की ओर से आया है। In verse 31, we realize this. Jesus answered them, do you now believe? और 31 में हम देखते हैं, यह सुनकर यीशु ने उससे कहा, क्या तुम अब विश्वास करते हो? This is the same question that Jesus has for you. Do you believe Jesus Christ? और आज यीशु मसीह आपसे सेम सवाल करता है, क्या आप ईश्वर पर विश्वास करते हैं? Do you believe that he can solve all your problems? क्या आप विश्वास करते हैं कि वो आपकी सारी समस्याओं का समाधान कर सकता है? Do you believe that he can heal you from any disease? और क्या आप विश्वास करते हैं कि वो आपको हर बीमारी से चंगा कर सकता है? Do you believe that he can do the impossible in your life? क्या आप विश्वास करते हैं कि आपके जीवन के हर एक असंभव चीज को वो पूरा कर सकता है? Do you believe that whatever promise or prophecy that you have received from God, it will definitely come to pass?
और क्या आप विश्वास करते हैं कि जो कुछ भी जितनी भी जो भविष्यवाणियां हुई हैं, जितने भी वादे उसने इस वचनों में लिखे हैं, वो उनके जरिए वो सारी बातों को पूरा करता है? Believe in Jesus Christ, you and your family will be saved. अब यीशु मसीह पे आप विश्वास करिए ताकि आपका परिवार बचाया जाएगा। Verse 32 onwards. Indeed, the hour is coming, yes, has now come, that you will be scattered, each to his own, and will leave me alone. And yet I am not alone, because the Father is with me. देखो वह घड़ी आती है, वरन आ पहुंची है कि तुम सब तितर-बितर होकर अपना-अपना मार्ग लोगे और मुझे अकेला छोड़ दोगे, तो भी मैं अकेला नहीं, क्योंकि पिता मेरे साथ है। Jesus was foretelling what is going to happen. Yes, the disciples, Judas, betrayed him with a kiss. और यीशु यहाँ पे बताना चाह रहा था कि आगे क्या होगा, और उसके चेलों में से भी कुछ थे जिसने उसे धोखा दिया था। Then he ran away and he committed suicide. He hanged himself and died. और जिसने उसे धोखा दिया था वो वहां से चले गए और उन्होंने आत्महत्या कर ली और अपने आप को मार लिया। Peter denied Christ thrice. और जो पतरस था उसने प्रभु यीशु को 3 बार इनकार किया And he repented and cried. और वो बहुत ही पछताया और रोया। Disciples were scared when there was pressure on them. When they saw Jesus being beaten up, scourged, and taken from court to court, they ran for their lives. और उनके चेले थे वो डर गए थे क्योंकि यीशु को पकड़ा जा रहा था, मारा जा रहा था, उसे कोर्ट में यहाँ वहां लेके जाया जा रहा था, इसलिए वो यहाँ वहां तितर-बितर हो गए थे। Some hid in some rooms and buildings, some were waiting. That is when Jesus appeared in their room after his resurrection. और कुछ लोग जगह-जगह पे किसी बिल्डिंग में कहीं पे जा जाके छुप गए थे और ये चीज तब हुआ जब फिर परमेश्वर उसका पुनरुत्थान हुआ तब उसने मिलने आया उनसे। Yes, now Jesus was telling how his disciples would be scattered. It happened exactly like this. And Jesus, he was all alone. और जो चीजें होने वाली थी यीशु ने एग्जैक्ट वैसा ही बताया कि उसके चेले कैसे उसको छोड़ के चले जाएंगे और बिल्कुल भी वैसा ही हुआ और यीशु अकेला रह गया था। In the cross, he was all alone. और उस क्रूस पे वो बिल्कुल भी अकेला था। And we are saying that, yes, and will leave me alone. And yet I am not alone because the Father is with me. और यीशु ने कहा कि हाँ मैं अकेला हूं लेकिन मैं अकेला नहीं हूं क्योंकि पिता मेरे साथ है। Maybe some of you are alone right now, but Jesus is saying the same words to you. You are not alone. I am with you. I will never leave you nor forsake you. हो सकता है आप और हम में से कोई ऐसा महसूस कर रहा हो कि वो अकेला हो, लेकिन प्रभु उससे कहना चाहता है कि वो अकेला नहीं है, परमेश्वर उसके साथ है। परमेश्वर ने कहा है कि मैं तुम्हें ना ही कभी छोड़ूंगा ना कभी त्यागूंगा। Verse 33, these things I have spoken to you, that in me you have peace. In the world you will have tribulation, but be of good cheer. I have overcome the world. और हम 33 वचन को देखेंगे। मैंने ये बातें तुमसे इसीलिए कही हैं कि तुम्हें मुझ में शांति मिले। संसार में तुम्हें क्लेश होता है, परंतु ढांढस बांधो, मैंने संसार को जीत लिया है। Jesus is speaking about the tribulation that each and every person has to undergo in this wicked world. और यहाँ पे परमेश्वर उन क्लेशों के बारे में बात कर रहा था कि जो हम संसार में जो हर एक इंसान है उसको इस संसार में होके गुजरना है। Yes, in the midst of that storm, in the midst of the tempest, that is when you can have that peace of God within you. और इन क्लेशों के बीच में, इन परेशानियों के बीच में भी जो परमेश्वर ने जो शांति को दिया है, आप उस शांति को महसूस कर सकते हैं। Once upon a time, a king asked somebody to draw a picture, and the topic was peace. और एक बहुत समय की बात है कि एक जो राजा था उसने एक इंसान से कहा कि एक पिक्चर को ड्रॉ करे, और उसने कहा कि वो है शांति की पिक्चर। Many artists from different parts, they came and they began to draw a picture. But the picture that won the first prize, it was a unique picture. और बहुत सारे ऐसे चित्रकार थे, वो आए और उन्होंने बहुत सुंदर पिक्चरों को बनाया, लेकिन वो इंसान जो प्रथम उसने प्राइज को जीता था, उसने एक बहुत ही यूनिक पिक्चर को बनाया था। Yeah, the picture contained a waterfall. The water was gushing out. Yes, it contained the dark skies. It contained rain, thunder. It was a horrific picture.
और वो जो पिक्चर थी उसमें पानी बह रहा था, उसमें अंधकार जैसा था, उसमें बिजली जैसी चमक रही थी, वो बहुत ही ऐसी चित्र था। But in that picture, there was a tree, and on a branch, there was a bird. The bird was in perfect peace. और लेकिन उस चित्र में एक पेड़ बना हुआ था, उस पे एक चिड़िया बैठी हुई थी और वो चिड़िया थी कि वो एकदम से शांति में बैठी हुई थी। Yes, peace is experienced in the midst of trouble from every corner. और जो जो शांति होती है वो आप जैसी ही परिस्थिति में क्यों ना हो, वो आपको उस शांति को उस चीज में आप महसूस कर सकते हैं। That is why that painter won that particular that prize, because peace experienced in the midst of tough circumstances. और इसीलिए उसने उस कीमत को चुकाया है, क्योंकि जो शांति है वो हमें जितनी भी दुख और तकलीफ और अंधकार क्यों ना हो, हम उसके बीच में महसूस कर सकते हैं। Yes, Jesus is saying, in the world you will have tribulation, but be of good cheer. I have overcome the world. और इसीलिए यीशु इसमें कहता है वचन में कि तुम्हें संसार में क्लेश होता है, लेकिन तुम ढांढस बांधो क्योंकि मैंने संसार को जीत लिया है। Yes, my dear friend, you might be in the midst of trouble, but in that experience, Jesus, the peace given by Jesus, the peace that surpasses all understanding. और हो सकता है कि आप और हम में से कोई हो जो बहुत सारी इन दुख और तकलीफ के बीच में से हो, लेकिन आप प्रभु जो है वो आपको जो शांति दे सकता है इन सब के बीच में भी। Jesus is the Prince of Peace. The question is, have you accepted him as your Lord and Savior? जो यीशु जो है वो शांति का राजकुमार है, पर सवाल ये है क्या आपने यीशु को अपने उद्धारकर्ता के रूप में ग्रहण किया या नहीं? Yes, I will give you my own peace, the peace that surpasses all understanding. हाँ, यीशु कहता है कि मैं तुम्हें अपनी शांति दिए जाता हूँ। वो ऐसी शांति नहीं जो संसार देता है, बल्कि ऐसी शांति जो सब चीज से परे है। So in the small passage we saw that Jesus is saying that sorrow will be turned to joy, and he is saying how he has overcome the world, and you too can overcome the world. और इस पैसेज में, इस वचन में हमने देखा है कि कैसे यीशु कहता है कि तुम्हारा जो शोक है वो आनंद में बदल जाएगा, और कैसे यीशु ने इस संसार पे विजय हासिल की। Even though this was told by Jesus before his crucifixion, all the things it can still be applicable today. Yes, this was before. So before the second coming of Jesus. Yes, right now we are living in a difficult world. There are trials and tribulations. और ये हो सकती, यद्यपि ये सारी बातें बहुत साल पहले उसके क्रूस के समय में कही गई थी, लेकिन आज भी ये सारी बातें एप्लीकेबल है। जब वो हमारे लिए वो सारी चीजों को कर सकता है जो पहले वो करने के योग्य था। Yes, the disciples were scattered because of persecution. Even now that is happening in this world. There is persecution. Christians are persecuted. People are running helter-skelter. और जैसे कि हमने देखा कि उस टाइम पे भी जो चेले थे वो इधर से उधर तितर-बितर हो गए थे, तो आज भी हम देखते हैं कि संसार में जो मसीह लोग हैं उन्हें ताड़नाएं मिलती है, उन्हें यहाँ से वहां किया जाता है। And just like Jesus told, you will have tribulation in this world. Yes, we are having tribulation in this world. और जैसा कि यीशु ने कहा था कि तुम्हें इस संसार में क्लेश होगा, वैसा ही हमें इस संसार में क्लेश होता है। We hear about wars. We hear about famines. We hear about earthquakes. We hear about natural calamities and disasters everywhere. और हमने देखा है कि हम सुनते हैं उन लड़ाइयों के बारे में, हम देखते हैं कि उन अकालों के बारे में, हम देखते हैं जितनी भी प्राकृतिक आपदाएं होती हैं, इन सब के बारे में हम सुनते हैं। We hear about pandemics. We hear about the waves and waves of pandemic. But in these times, there is peace in Christ. और हम सुनते हैं कि महामारियों के बारे में, हम सुनते हैं कि बहुत बहुत सारी महामारियां आ गई हैं, लेकिन उन सब के बाद भी वह परमेश्वर हमें अपनी शांति दिए रहता है। Once again, are you ready to ask in the name of Jesus Christ of Nazareth? और एक और बार मैं आपसे कहता हूं कि आप तैयार हैं प्रभु यीशु नाजरी के नाम से मांगने के लिए? Most assuredly I say to you, whatever you ask the Father in my name, he will give you. Until now, you have asked nothing in my name. Ask and you will receive, that your joy may be full.
और मैं आपसे कहता हूं कि आप प्रभु यीशु के नाम से पिता से कुछ भी मांगिए, वो आपको देगा। अभी तक आपने नहीं मांगा, इसीलिए आपको नहीं मिला। आप मांगिए ताकि आपका आनंद जो है वो पूरा हो जाए। Let us pray for the next 2 minutes. आइए हम अगले 2 मिनट के लिए प्रार्थना करेंगे। Our loving Heavenly Father, thank you, Lord, for revealing your words to us. मेरे पिता परमेश्वर, धन्यवाद करते हैं कि तूने अपने वचनों का प्रकाश किया हमारे ऊपर। Thank you, Lord, for giving us the opportunity to listen to your word, to understand it, and to apply it in our lives. मेरे पिता धन्यवाद करते हैं इस अवसर के लिए कि तूने अपने वचनों को हमें सुनने का मौका दिया, उसे समझने का मौका दिया, अपनी जिंदगी में उसे अप्लाई करने का मौका दिया। Thank you, Lord, for keeping all of us alive in the midst of this raging pandemics all over the world. मेरे पिता धन्यवाद करते हैं कि तूने इस महामारी के समय में भी हम सबको तूने जिंदा रखा, इसलिए तेरा धन्यवाद करते हैं। Thank you, Lord, for giving us your promise. Yes, perfect peace in the times of troubles. मेरे पिता धन्यवाद करते हैं कि तूने अपने वायदों को हमें दिया, कि जितनी भी परेशानियों में भी तूने अपनी शांति को हमें दे रखा है। Lord, you have told us, whatever you ask in my name, you will receive it. Right now we ask you, Lord. Lord, grant us the desires of our heart. Lord, solve our problems in Jesus' mighty name. मेरे पिता, तूने कहा है कि तुम मेरे नाम से कुछ भी मांगोगे, मैं उसे पूरा करने के लिए तैयार हूँ। आज हम तेरे नाम से मांगते हैं कि हमारे हृदय की जितनी भी मनोकामना है वो पूरी हो जाए, हमारे हृदय की जितनी भी इच्छाएं, जितनी भी समस्याएं हैं वो खत्म हो जाए। By your stripes we are healed. Be healed right now in Jesus' mighty name. और तेरे कोड़े खाने से हम चंगे हुए हैं, तो इसी वक्त हम तेरे नाम से चंगे होने पाए। Lord, let your will be done in the lives of your people, Lord. और मेरे पिता परमेश्वर, तेरी जितनी भी योजनाएं हैं वो तेरे लोगों के ऊपर पूरी होने पाए। Lord, I pray that let the sorrows of these people be turned into joy. मेरे पिता, हम प्रार्थना करते हैं इन लोगों के जितने भी शोक है वो एकदम से आनंद में बदल जाए। Let the question marks in their lives, let it become exclamation marks. और इनके जितने भी जो भी क्वेश्चन मार्क जितने भी हो, वो मेरे पिता परमेश्वर वो आश्चर्य में बदल जाए। Lord, let the people say that because they chose Jesus Christ, the life is transformed. और मेरे पिता, ये लोग कहने पाए कि उन्होंने प्रभु यीशु को ग्रहण किया, इसलिए उनकी जिंदगी बदल गई। Lord, make each one of them a testimony for your name's sake. मेरे पिता, हर एक को तू अपने नाम की गवाही को बना। If anyone lacks wisdom right now, he ask for wisdom for these people. If anybody lacks wisdom, let him not reproach, but ask of Jesus and he will give it to you. और अगर किसी को भी बुद्धि और ज्ञान की जरूरत है तो हम प्रार्थना करते हैं उसे बुद्धि और ज्ञान से भर दे, क्योंकि जब हम अपने पिता से मांगते हैं तो वो हमें देता है। We declare long life to each and every participant. और हम हर एक पार्टिसिपेंट के लिए मेरे पिता एक उनकी लंबी उम्र की कामना करते हैं। We declare complete peace, perfect peace offered by Jesus Christ to each of them in every situation. और मेरे पिता, हर एक के लिए हर एक परिस्थिति में हम तेरी शांति की प्रार्थना करते हैं। Let them be overcomers in this world. Let them be overcomers. Let them succeed in whatever they do in Jesus' mighty name. और ये इस जगत में एक विजयी होकर निकलने पाए, वो जो कुछ भी क्यों ना करे अपनी जिंदगी में, उसमें वो बहुत ही अच्छे से सफलता प्राप्त करने पाए। Lord, this Easter day, Lord, let the resurrection power hit their lives and let them be resurrected from every dead circumstances. और मेरे पिता, इस ईस्टर के समय पे, इस पुनरुत्थान के समय में उनके जीवन को भी तू पुनरुत्थान कर दे, उनके हर एक समस्या को मेरे पिता परमेश्वर तू बदल दे। Every hindering stone is rolled down, is rolled away from their lives and let them experience freedom in Christ Jesus. और उनके जीवन की हर एक जो पत्थर जैसी जो समस्याएं हैं उनके जीवन से हटा दे और तेरी उस आजादी को वो महसूस करने पाए। Lord, we speak joy into this life, joy unspeakable offered by Jesus Christ. और मेरे पिता, हम तेरे आनंद